starting with a new chapter, the first chapter and the first module that is known as personal identity. For the investigation of any person, for the determination of death, for the determination of the criminal or anything else, the first important thing is to establish the identification of the person. As I told you in the term corpus delicti, the offense, body of offense, it is important to understand, it is important to know about the it is important to know कि किस तरह से हमने आइडेंटिफिकेशन एस्टेब्लिश करनी है और कैसे हमने उस पर्सन की प्रॉपर आइडेंटिफिकेशन कैसे करनी है। अच्छा, अब आपको क्या समझ आती है विद द टर्म पर्सनल आइडेंटिफिकेशन? What do you know about the term personal identification? Establishment of identity, individuality of a person. Okay? For example, I entered in this room. Some people know me by my face. Some people knew my name. Some people knew that okay, I am from the forensic department. Some people who doesn't know me at all, they think okay, this is a female of this age group. Okay? So these all things come under the personal identification. Someone think the exact identification of myself, that is the complete identification. Some people just have a few, knew about a few traits of me, okay? That is the partial identification. So for a person to be completely identified, there are many characteristics which we will discuss in this chapter, one by one. What are the parameters of identification of individual, or what are the methods which we opt to identify a person? So the objectives of this lecture is, if living person or a dead body comes to any person and any doctor specifically, how he established the individuality of that body or of that person, either completely or partially. Okay, so the personal identification means individuality, establishment of individuality of a person. आज इन सिस्टम को कुछ हो गया, वो भी नहीं ठीक है। तो एस्टेब्लिशमेंट आपने कर ली इंडिविजुअलिटी की, पर्सन की, दैट इज नोन एज personal identification, and this is a definition which is asked most of the time in vivas, that how would you define the term personal identity? And in case of forensic medicine, it is basically mandatory to know the exact definition, because most of our terms are related to law. So आपने definitions को खुद से बनाना नहीं है, most definitions should be as it is. So ये आ जाती है आपकी कि establishment कैसे कर रहे हो आप, identification कैसे कर रहे हो. So identification of a person, either dead body or the living person, is based on certain physical characteristic of a person. जब आप देख रहे हैं, तो आप physical characteristics देख रहे हो, obviously आपने वो देखे और आप understand कर रहे हो कि ये person कौन हो सकता है या ये dead body किसकी हो सकती है. As I told you, there are two types of identification. One is known as complete identification and other one is known as partial identification. Most of the time in vivas, when some of you come to us, मैं पूछ लेती हूँ कि okay, what is your university roll number? तो आप अपना बताते हो. As I ask, okay, what is its medical importance? ठीक है, तो mostly परेशान हो जाते हैं बच्चे के, शायद ही नंबर कुछ ऐसा है कि इसकी कोई importance है. That is simply, okay, this is my identification and it helps in the identification of myself. The importance which I know about this roll number is that it is my personal identification. ठीक है, तो वो इतना छोटा सा उसका आंसर होता है, ये मेरी identification. So it means absolute identification or fixation of the individuality of the person.
आपका नाम, आपका एड्रेस, आपका सब कुछ आपका पता चल रहा है, एग्जैक्ट उस बंदे के बारे में हम जान रहे हैं, जैसे उसके आईडी कार्ड से आपको मिल रही होती है, दैट इज अ कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन। एंड देन द पार्शियल आइडेंटिफिकेशन व्हिच इज इन मोस्ट ऑफ द केसेस कि जहाँ पे डिग्रेडेड बॉडी है, फ्रेगमेंट्री रिमेन्स हैं, बोन्स हैं, या वॉइस, या एक ऐसी जगह है जहाँ पे एक मैस डिजास्टर हुआ है और वहाँ पे आप एग्जैक्टली नाम वगैरह नहीं पता कर सकते। इन एनी केस अगर वहाँ पे कुछ ऐसी पहले से ऐसा हुआ है कि आपने एंट्री की हुई है, तो फिर तो आपको सबका पता होगा, बिकॉज इन डीएनए ऑल्सो कंट्रोल इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, जिससे मैच करना होता है। अगर कंट्रोल ही नहीं है आपके पास, आप मैच किससे करोगे? ठीक है। और पाकिस्तान में हमें पता है कि हमारे जो आईडी कार्ड्स बने हुए हैं उसमें डीएनए या ब्लड ग्रुप्स तो नहीं है हुए, ठीक है, तो वो अगर नहीं है तो आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकोगे। सो इन दैट केसेस द पार्शियल आइडेंटिफिकेशन पर्पस कि आपको थोड़ी बहुत उस इंसान के बारे में, किसकी जेंडर ये है, रेस ये हो सकती है, एज ग्रुप ये है, तो अगर मिसिंग पर्सन कोई है और उसके भी थोड़े से उससे मिलते जुलते हैं तो वो आप उसके ब्रैकेट के अंदर उसको फॉल करा सकते हैं। अब आपको जरूरत क्या है? व्हाई इट इज इम्पोर्टेंट टू नो अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ एनी पर्सन? So there can be the civil reasons and there can be the criminal investigations. Like in civil reasons, most of the time जब भी किसी इंसान की identification होती है, for example आप इस कॉलेज में आ रहे हो, you have your identification with yourself for admission in a medical college. If someone enters in a new job, उसको भी अपनी identification बतानी पड़ती है। Insurance claim कोई करना चाह रहा है, ठीक है, वो अपना रिलेशनशिप बताएगा, वो बताएगा कि ये जो डिजीज पर्सन था मैं उसका बेटा हूँ, बेटी हूँ, ये मैं क्लेम कर रहा हूँ और ये मेरी आइडेंटिफिकेशन है। तो ये बहुत सारे जो मैटर्स होते हैं वहाँ पे आप इनके नॉर्मली आइडेंटिफिकेशन जो है वो, आप मिसिंग पर्सन है कोई, आप उसकी बताते हो और फिर जो एज आई टोल्ड यू कि रिलेशनशिप ड्रॉ करते हैं पार्शियल आइडेंटिफिकेशन से। तो दीज ऑल आर द सिविल थिंग्स विच हेल्प इन द। अब मैरिज में जब आप सिविल मैरिज या कोर्ट मैरिज होती है, यू ऑल नो अबाउट द सिग्निफिकेंस ऑफ द आईडी कार्ड व्हिच इज रिटन ऑन द निकाहनामा, जस्ट टू नो अबाउट द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द ब्राइड एंड ग्रूम। तो आइडेंटिफिकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन ऑल द सिविल केसेस। देन वी कम टू द क्रिमिनल केसेस कि भाई क्रिमिनल केसेस के अंदर मोस्टली फोरेंसिक से रिलेटेड चीजें होती हैं, दैट आर इन द क्रिमिनल केसेस कि आप वहाँ पे आइडेंटिफिकेशन क्यों ड्रॉ कर रहे हो। कोई वांटेड क्रिमिनल्स हैं, ठीक है, एब्सकॉन्डेड सोल्जर्स हैं, किसी ने कोई मर्डर किया है, ठीक है, और आपके पास 3-4 लोग आए हैं, आपने उनमें से आइडेंटिफाई करना है कि वो इज द एक्चुअल मर्डरर, ठीक है। तो ये सारे आपके विक्टिम्स, एक्सीडेंट के विक्टिम्स हैं, बॉम्ब ब्लास्ट के विक्टिम्स हैं, जहाँ पे आप जितनी आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो। बिकॉज आपको मजे की बात बताती हूँ कि आपको क्या लगता है जब हम ऑटोप्सी करते हैं तो व्हाट कैन बी द मेन ऑब्जेक्टिव टू डू द ऑटोप्सी? देयर आर मेनी ऑब्जेक्टिव्स, लेकिन आपको क्या दिमाग में आ रहा है? शाबाश, कॉज ऑफ डेथ हो गया, पोस्टमार्टम इंटरवल हो गया, टाइम ऑफ डेथ हो गया, ठीक है। बट बिफोर fulfilling any other objective, the first objective is to establish the identity. That is why we are going to perform this in case of bomb explosions. जहाँ पे आपको पता है इंटेंशन क्या है, ठीक है, आपको पता है बॉम्ब एक्सप्लोजन हुआ है, वहाँ पे आप क्यों एक्ट कर रहे हो? टू एस्टेब्लिश आइडेंटिटी। जितने भी आप डिजास्टर्स की वाले केस देखते हो बॉम्ब एक्सप्लोजन के, इन दैट केसेस मेयो हॉस्पिटल में आती हैं, 4 बॉडीज होती हैं, पूरी ऑटोप्सी हो भी नहीं सकती। बट आपका पर्पस क्या होता है कि आप जितनी ऑटोप्सी कर सकते हो, दैट इज कि आप बता सको कि कहाँ से बिलोंग करता है, कौन पर्सन है। तो वन ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिफिकेशन ऑफ दैट पर्सन। सो दीज आर द केसेस वेयर यू आर गोइंग टू डू द पर्सन आइडेंटिफिकेशन, like in mass disaster cases. Then identification of dead is also very important, like in all the cases earthquake हुआ है, ठीक है, या unknown कोई bodies पड़ी हुई है, mutilated bodies पड़ी हुई हैं, all those cases आप जो है वो normally autopsy करके personal identification जो है वो draw करते हो। Then comes कि what should be your approach to establish the personal identification? Should be systematic. As I told you, even in the case of crime scene, when you go, you have certain things in your mind and you have a specific approach to perform that. Similarly, in the personal identification, you should keep in mind about the system by which you are following that.
नॉट रेंडमली कि पहले ये चीज़ कर ली, फिर ये चीज़ कर ली, फिर याद आया तो कुछ और चीज़ कर ली। आपके माइंड में एक स्पेसिफिक प्रोटोकॉल होगा, आपके माइंड में एक स्पेसिफिक सीक्वेंस होगा बाय विच यू आर गोइंग टू एस्टैब्लिश द आइडेंटिटी कि ओके मैं फिजिकल फीचर से शुरू करूँगी, या अगर उसके पास कोई चीज़ है, ID कार्ड है या कोई स्पेसिफिक चीज़ है जिससे मैं आइडेंटिफिकेशन देख सकती हूँ, वो देखूंगी, फिर मैं उसके फिजिकल देखूंगी, फिर मैं उसका रेडियोग्राफ कराऊंगी और वट एवर थिंग्स आर। ठीक है, तो एक सीक्वेंस में हम चलेंगे। सिमिलरली इन द डेड बॉडी आप बिलोंगिंग्स देखोगे, फिर आप आगे जाओगे। तो द अप्रोच शुड बी वेरी अप्रोप्रिएट, द एग्जामिनेशन शुड बी, यहाँ पे क्या प्रॉब्लम है गाइस? कल से आप लोग हमेशा इस साइड पे बैठो थॉरो। ये नहीं है कि आपको एक चीज पता चल रही है, यूर इन डाउट कि ये है, और आप अपने एग्जामिनेशन को दरमियान में छोड़ दोगे। अपने एग्जामिनेशन को आप पूरा रखोगे। ठीक है, यहाँ पे बस पोर्टेबल माइक नहीं चल रहा, अदरवाइज मैं आपको यहीं मिलूंगी, बल्कि वहाँ मिलूंगी ज़्यादा। ठीक है, सो सब्जेक्टिव एज वेल एज ऑब्जेक्टिव मेथड ऑफ आइडेंटिफिकेशन शुड बी यूज्ड। एनी इंफॉर्मेशन, ये क्या मतलब है इस बात का? What can be the subjective method and what can be the objective method? Guess करो। So, एक क्वेश्चन पूछते हैं हम वाइवा में, एक क्वेश्चन पूछते हैं हम आपकी थ्योरी में कि what are the methods of identification? 90% of the class, जैसे पहली चीज आप लोगों को याद होगी है मॉडिफाइड कॉन्टिनेंटल, जो अगली चीज मैंने आपको याद करानी है, that are the methods of identification. Majority of the class confuses the methods of identification with the parameters of identification. Parameters are different. We use these parameters in methods. But methods are a broader term. When anybody asks you what are the methods of identification, they are always these three methods of identification. In these methods of identification, we adapt the different parameters like physical है, anatomical है। Disappointing कर बना रहे हो अच्छे से। So subjective method means if a subject is there, if a person is there, by looking at that person, what information you can give. Here all the parameters जो हम बात करेंगे, वो पैरामीटर्स आपने चेक करने हैं इन द सब्जेक्टिव मेथड। बट आपने कभी भी ये नहीं कहना कि फिंगरप्रिंटिंग इज अ मेथड और DNA फिंगरप्रिंटिंग इज अ मेथड। ठीक है, ये सब चीजें पैरामीटर्स हैं। स्पेसिफिकली कुछ एनाटॉमिकल पैरामीटर्स में आएंगी, कुछ फिजियोलॉजिकल पैरामीटर्स में आएंगी, बट मेथड इज सिंगल, दैट इज सब्जेक्टिव मेथड। ठीक है, आप मेरे पास आ रहे हो रूम में, मैं जो सबसे पहली चीज आपको मेथड यूज कर रही हूँ अपने माइंड में, दैट इज द सब्जेक्टिव मेथड वेयर आई एम यूजिंग डिफरेंट पैरामीटर्स। ठीक है, तो सब्जेक्टिव मेथड मीन्स द एग्जामिनेशन ऑफ द सब्जेक्ट थ्रू योर आईज और बाय वेरियस अदर मेथड्स। सो सब्जेक्टिव मेथड में subject is in front of you and by having conversation, looking at और ये सब चीजें, यहाँ पे सिर्फ subject आप, similarly in case of a body, when a dead body is there, the first चीज जो आप देख रहे हो, जो आप assess कर रहे हो, gender देख रहे हो, age group देख रहे हो, stature देख रहे हो, that is the subjective method. अब उस subjective method में you are using the parameters. That parameters can be acquired, that parameters can be by birth. तो ये सारे जो आप यूज करोगे, these are the parameters which are used in case of subjective method. ठीक है, फिर हम आ जाते हैं पैरामीटर्स के ऊपर। लाइक एनाटॉमिकल पैरामीटर्स कैन बी बाय बर्थ। आई कलर है, कुछ चीजें हैं जो हमारी बाय बर्थ है, कुछ चीजें हैं जो एज के साथ आप एक्वायर करते हो, आपकी हाइट बढ़ती है, डिफरेंट थिंग्स बढ़ती हैं, तो वो आपके सेकेंडरी पैरामीटर्स होते हैं। ठीक है, ये आपकी आहिस्ता से डेवलप होते हैं विद एज, और ये दोनों आपकी वो पैरामीटर्स हैं विच आर यूज्ड इन विच मेथड? सब्जेक्टिव मेथड। सो दीज आर ऑल। आपकी वॉइस है, आपकी गेट है, किसी की बहुत डिस्टिंक्टिव वॉइस होती है, आंखें भी बंद करो तो आपको समझ आ रही है। हमारे किसी पॉलिटिकल लीडर्स की भी होती हैं डिफरेंट डिफरेंट, आपको नहीं भी, आपको सिर्फ आवाज आ रही है, आप समझ जाओगे इसकी। सबकी पता चलती, हाँ उनकी भी पता चलती सबकी। ओके, इसी तरह हर इंसान की कोई डिस्टिंक्टिव फीचर होता है ना, तो वो पैरामीटर्स में आ रहे हैं और वो आप सब्जेक्टिव मेथड से देख रहे हो। देन कम्स द नेक्स्ट थिंग, वेरी सिंपल थिंग, ऑब्जेक्टिव रिलेटेड टू ऑब्जेक्ट। अच्छा बस
Objective method relates to any object which is present with that person. First object आप कौन सा चेक कर सकते हो आइडेंटिफिकेशन के लिए, which is really relevant. शाबाश, आईडी कार्ड. ठीक है. उसके बाद कोई और चीज, एक बच्चा है जो बहुत कोई हाई ब्रांड वॉच पहनता है और वैसी वॉचेस बहुत कम और एक पर्टिकुलर जगह से मिले, आप रिलेट कर लोगे. किसी के स्पेक्टिकल्स जो होंगे वो बहुत डिफरेंट होंगे बाकी से, आपको पता चल जाएगा. ठीक है कि ये इससे बिलोंग करते हैं. सम पीपल हैव डेंचर्स ओल्ड एज में, वो हेल्प कर सकते हैं. किसी का कोई स्पेशल ऐसा ऑब्जेक्ट है जो हेल्प कर सकता है कि आपने कैसे आइडेंटिफाई करना है. सो एनीथिंग विच इज रिलेटेड टू दैट पर्सन, अगर वो मिली है उसके पास से, ऑब्वियसली आप सिर्फ ऑब्जेक्टिव मेथड पे नहीं करोगे कि आप सब्जेक्टिव भूल जाओगे, आप वो भी साथ देखोगे. बट इन दैट केसेस वेयर द बॉडी इज डिसफिगर्ड हुई हुई है, ठीक है, आप डीएनए पे जाने से पहले वहाँ कंट्रोल नहीं है, आप इन मेथड्स को यूज करते हो अलॉन्ग विद द सब्जेक्टिव मेथड. ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं ये डिकम्पोज बॉडी पे. जैसे बायोलॉजिकल मटेरियल आपको मिला है वहाँ पर, इन दैट केसेस आप हेयर, फिंगर, इन सब चीज़ों को भी यूज कर सकते हो. और ये वो है जो आपको हेल्प कर रहे हैं विद द सब्जेक्टिव मेथड और विदाउट द सब्जेक्टिव मेथड टू हेल्प द आइडेंटिटी ऑफ दैट पर्सन. नॉन बायोलॉजिकल में सारे वो चीज़ें आएंगी जो बाकी में देखी, और बायोलॉजिकल में आपके बायोलॉजिकल मटेरियल्स हैं विच कैन ऑल्सो हेल्प इन द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन. ठीक है. ये जैसे आप जाते हैं सबसे इम्पॉर्टेंट मेथड, whenever anybody asks you which is the most relevant method specifically in case of autopsy, that is known as third party method. It means कि पुलिस क्या करती है कि जब कोई बॉडी आती है तो आपको वहाँ, आपके पास पुलिस होती है और along with that कोई रिलेटिव होता है, कोई फ्रेंड होता है जो आता है और बॉडी को आइडेंटिफाई करता है. ठीक है. या किसी की चीज़ें मिलती हैं, ऑब्जेक्ट मिलता है, तो कोई इंसान, आपको तो नहीं पता ना कि ये पर्सन यहाँ पे था, और वो आइडेंटिफाई करने के लिए जो पर्सन आता है, दैट इज नोन एज थर्ड पार्टी आइडेंटिफिकेशन मेथड. एंड इन आवर केस हमारे पास जो आइडेंटिफिकेशन करवा रहे होते हैं वो पुलिस वाले करवा रहे होते हैं. तो समटाइम या पुलिस आके आइडेंटिफाई करती है या पुलिस अपने साथ किसी को लाती है जो उसके रिलेटिव होते हैं और वो आइडेंटिफाई करते हैं द ऑब्जेक्ट रिलेटेड टू दैट और the body of the person. So most relevant method, most used method in Pakistani setup is this third party identification method. ठीक है. उसके बाद हम आ जाते हैं कि आइडेंटिफिकेशन के लिए हमारे पास स्टैंडर्ड मेथड्स क्या हैं. फॉर एग्जांपल we have distributed the biodata form to you people. ठीक है. In that biodata form we have your photograph, we have your name, we have your address. For at the end of we have your all record, तो हम अब आपका साथ साथ उस पे लिखेंगे, starting from your attendance to your everything. Whenever a person of you from you come to us for the viva, हमारे पास आपका बायोडाटा फॉर्म साथ ही पड़ा होगा. मैं आपके साथ फॉर एग्जाम्पल पूरे साल ज़्यादा अटैच रही हूँ, मुझे वैसे भी पता चल जाएगा. फॉर एग्जाम्पल हमारे HOD का इतना इंट्रैक्शन नहीं है, जस्ट बाय लुकिंग एट दैट बायोडाटा फॉर्म, योर फोटोग्राफ, योर एवरीथिंग, उनको आपकी सारी आइडेंटिफिकेशन थ्रू आउट द ईयर, आपकी प्रोफाइल जो है वो पता चल जाएगी. सो हमारे पास फोटोग्राफ एंड रेलेवेंट डाटा एक बहुत इंपॉर्टेंट मेथड होता है आइडेंटिफिकेशन का. सिमिलरली आपने जब आईडी कार्ड बनवाया होगा, हमेशा वहाँ पे पूछा होता है आइडेंटिफिकेशन मार्क्स. ठीक है. सो दैट आइडेंटिफिकेशन मार्क्स, बट आपको पता है कि ये जो चीज़ें बनी हुई है हमारे आईडी कार्ड के लिए वो सब थोड़ी सी ये ऑब्सोल्यूट है, बिकॉज आपको पता है अपनी आइडेंटिफिकेशन थ्रू दीज थिंग्स कैन ईजिली बी चेंज्ड. तो इट इज़ हाईली एडवाइजेबल टू एड सम DNA थिंग और सम ब्लड ग्रुप थिंग या ऐसी कोई चीज़ जो कि चेंज नहीं हो सकती. तो वो नादरा के पास है काफ़ी अरसे से और वो इस पर काम भी कर रहे थे कि डाटा बैंक जो है वो हम सिर्फ क्रिमिनल का नहीं, हम डाटा बैंक जनरल पब्लिक का भी जो है वो करें. अदरवाइज क्रिमिनल्स का यू नो कि जब वो जाते हैं एक जेल में प्रॉपर, तो वहाँ उनका DNA होता है और डाटा बैंक जो है वो इकट्ठा हो रहा है. बट इन केस ऑफ नॉर्मल पीपल, आप वो आईडी कार्ड की कुछ अर्से तक कह रहे हैं कि शायद ब्लड ग्रुप तो शुरू करेंगे और फिर उसके बाद आगे जो है वो DNA की तरफ लेके जाएंगे, तो वो बहुत एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन उसके बाद हो जाएगा. ठीक है. बिकॉज थंब प्रिंट की जहाँ तक बात है, दैट इज ऑल्सो एब्सोल्यूट आपकी वो आइडेंटिफिकेशन, बट देयर आर सर्जरीज जहाँ पे थंब प्रिंट्स भी प्रॉपरली लोग चेंज कर लेते हैं. सो दिस इज बेस्ड, हमारा आईडी कार्ड ये बहुत पेट वाइवा क्वेश्चन है कि ऑन विच प्रिंसिपल द ID card is based. National ID card is based on a principle which is known as Quick Hits rule. It means
individuals can be same. In our perception, we basically think कि हमारी जितनी population है, according to our ID card, हर बंदा individual है और कोई दूसरे जैसा नहीं है, क्योंकि we know that by specific original dactylography or fingerprinting, no two people are same. DNA बेहतर होता है इस तरह या fingerprinting? कोई ऐसी चीज अगर मैं कह रही हूँ कि फेक नहीं हो रहा, कुछ ओरिजिनल हो रही है चीजें, फिंगरप्रिंटिंग क्यों? अच्छा, और जोनी और विलियम ट्विंस के फिंगरप्रिंट्स डिफरेंट होते हैं, डीएनए सेम, ठीक है? थिंग इज इफ डन इन अ वेरी गुड वे और सब कुछ ठीक हो तो इट इज सुपीरियर इन दैट केस, ठीक है? उसके बाद द आइडियल टीम फॉर द एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द इंडिविजुअलिटी ऑफ अ पर्सन. Obviously, the medical jurist, your forensic expert is there, forensic anatomist, radiologist, ठीक है? Because we know the bony structure, we know हमें पता होना चाहिए age के लिए, radiograph, serologist, any biological material अगर है, blood group देखना है, DNA देखना है, histopathologist can be there in specific cases, not in all cases, and forensic sciences expert. This is a team which comprises when a board comes. स्पेसिफिक जो आपकी ऑटोप्सी होती है ना, इवन इन दैट केसेस एक जगह पे नहीं बैठे होते वो, लेकिन जो आप सैंपल भेजते हो डिफरेंट जगह, ऑलमोस्ट यही वाले लोग होते हैं जो टीम कंप्राइज होती है. बट जो बड़े बड़े बोर्ड बनते हैं जहाँ पे वांटेड पर्सन है या कुछ ऐसे क्रिमिनल्स मिले हैं बलूचिस्तान में किसी जगह से, वहाँ पे पूरा बोर्ड बैठता है उनको रिलेट करने के लिए, और वो एक ही जगह बैठ के एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी ऑफ दैट पर्सन या पर्सनल आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हैं. अच्छा जी, अब आ जाते हैं कि लेटेस्ट टेक्निक्स जो हमारे पास, ऑब्वियसली नॉट लेटेस्ट डेक्टालोग्राफी, लेकिन सिंपल से तो हटके है. सो दीज आर द थिंग्स जो हम नॉर्मली परफॉर्म करते हैं और हम करेंगे, पढ़ेंगे इसको पूरे पर्सनल आइडेंटिटी के चैप्टर में अलॉन्ग विद द सिंपल रेडियोलॉजी और रेडियोलॉजी और ठीक है. सबसे पहले आ जाता है आपके पास जर्नल डाटा. जब आपने आइडेंटिफिकेशन करनी है, you can have this journal data of that person, जो आप जितना पता है उतना आप लिखोगे. बट मोस्ट ऑफ द केसेस जहाँ बड़े लेवल पे आप आइडेंटिफिकेशन कर रहे होते हो, आपको इनमें से कुछ भी नहीं पता होगा और ये चीजें आपने पता करनी होती है. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट डेंटल डाटा इफ कंट्रोल इज देयर. अगर उस इंसान ने कभी कोई अपना डेंटल चेकअप कराया था, कोई ऐसा रिकॉर्ड मिल जाए और आपको एक पल्प मिली है या एक पर्सन मिला है जिसका मिल रहा है या मिसिंग टूथ है आगे वाला कोई, और वहाँ पे पुराना उसका कोई इस तरह का मिला है जहाँ पे वो डेंटल डाटा एंड अलॉन्ग विद दैट पल्प ऑफ डीएनए लेकर, डेंटल डाटा इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ द पर्सन. स्केलेटल डाटा, ठीक है, ये हम बहुत डिटेल्स में आगे पूरे पर्सनल आइडेंटिटी में यही पढ़ना है कि ये कैसे हेल्प करेगा. जेनेटिकल डाटा ऑब्वियसली मोस्ट इंपॉर्टेंट, आपका जीन्स के ट्रांसफर कैसे हो रहे हैं, दिस ऑल्सो हेल्प्स, ठीक है. देन दिस ट्रेस एविडेंस कैन ऑल्सो हेल्प. आपकी फिर फोटोग्राफ्स है, प्रीवियस है, अभी ली है, इसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हम आगे डिटेल में पढ़ेंगे. फेशियल रिकंस्ट्रक्शन एंड स्कल सुपरइम्पोजिशन, ठीक है. दीज आर द टर्म्स वेयर फेस इज कंस्ट्रक्टेड बाय 3D या स्कल सुपरइम्पोजिशन में बाय हैंड है वो प्रॉपर. ये आप लोगों को असाइनमेंट्स मिलेंगे कि आपने इसके ऊपर प्रिपेयर करके आना है कि व्हाट इज स्कल सुपरइम्पोजिशन एंड व्हाट इज फेशियल रिकंस्ट्रक्शन इन योर नेक्स्ट ट्यूटोरियल. थर्सडे वाला जो भी बैच होगा उसकी डिस्कशन इसी पे है. डीएनए प्रोफाइलिंग, स्कल सुपरइम्पोजिशन एंड फेशियल रिकंस्ट्रक्शन, ठीक है, ये सारा हम करेंगे. देन हैंड राइटिंग एक्सपर्ट्स, कैसे आपने डिफरेंशिएट करनी है. डीएनए फिंगरप्रिंटिंग एब्सोल्यूट आइडेंटिफिकेशन देती है हमें. देन गैल्टन मेथड्स, डेक्टालोग्राफी, और सबसे इम्पोर्टेंट आपका फुटप्रिंट भी बहुत इम्पोर्टेंट होता है. फुटप्रिंट हम किन में लेते हैं, जहाँ पे अच्छा हाथ कटे में, और शाबाश, वेरी गुड. मैटरनिटी होम्स में हमेशा फुटप्रिंट लिया जाता है. किसी और के भी फुटप्रिंट बहुत लेते हैं, बच्चों के तो हो गए ना, बिल्कुल. पायलट्स, ठीक है, उनके भी फुटप्रिंट्स ही नॉर्मली आइडेंटिफाई करते हैं. देन लिप प्रिंटिंग, आपको पता है आपकी लिप जो काइलोस्कोपी है, ये बड़ा पूछ रहे थे इस दफा एक्सटर्नल, और किसी को नाम ही नहीं पता था कि काइलोस्कोपी किसको कहते हैं. इसी तरह ट्रिपियोलॉजी होता है, आपके बालों की जो एग्जामिनेशन होता है, ये भी एक दफा एग्जामिनर ने बहुत पूछा और किसी को टर्म का नाम नहीं पता.
अच्छा बस पोरोस्कोपी क्या होगी? Examination of pores, and these are also specific and individual to each and every person. ठीक है? And then blood grouping होगी, height, weight, anthropometry. Anthropometry का कोई आइडिया है? आपको पता है कि जब एक इंसान 21 ईयर का हो जाता है तो उसकी जो मेजरमेंट्स होती है सिटिंग, स्टैंडिंग, लाइंग, आप डिफरेंट तरीके से मेजर करो तो एवरी पर्सन इज डिफरेंट. हर किसी की जो मेजरमेंट है वो डिफरेंट होती है. बट ये मेथड इसलिए आगे इतना नहीं हुआ था बिकॉज आपके मेजरमेंट की जो वेज है ना वो दो लोगों के डिफरेंट हो सकते हैं. दैट इज वाई मेथड आगे नहीं चला था. अदरवाइज दिस इज ऑल्सो इंडिविजुअल एंड यूनिक मेथड टू परफॉर्म. देन टैटू मार्क्स कैन ऑल्सो हेल्प. अच्छा मुझे बताओ कि अगर एक इंसान की टैटू मार्क था, आपको पक्का पता है कि ये वही क्रिमिनल है और इसका टैटू मार्क अब किधर गया है, नजर नहीं आता, करवा लिया, आपको कैसे मिल सकता है दोबारा? ब्लड में नहीं है, स्कार भी नहीं है ना, उसने पूरा रीजनल लिम्फ नोड्स. रीजनल लिम्फ नोड्स में उसकी आपको डाई स्टेन मिल जाती है. तो दिस इज आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट वाइवा क्वेश्चन. ये आपसे पूछा जाता है कि लेटेड टैटू मार्क को आपने कहाँ से रिलीज किया. स्कार मार्क्स, ऑक्यूपेशनल मार्क्स, ये सब भी आपको आइडेंटिफिकेशन दे सकते हैं. एक्सरे ऑफ द फ्रंटल साइनस इज आल्सो वन ऑफ द श्योरेस्ट मेथड और ये भी हर किसी का डिफरेंट है. ठीक है. उसके बाद ये इम्पोर्टेंट नहीं है. अब जो इम्पोर्टेंट चीज़, छोटा सा हमारा टॉपिक है जो हमने देखते हैं कि एज डिटरमिन हमने कैसे करनी है. अब उससे पहले आपको बताना है कि ये दो तरह से क्वेश्चन आता है. वन टाइप ऑफ क्वेश्चन इज व्हाट इज मेडिको लीगल इम्पोर्टेंस ऑफ एज. Similar question comes in that what are the ages of medical legal importance? Old age and person. तो आपने बेसिकली क्वेश्चन सिंपल ये है कि what are the ages of medical legal importance या what is the medical legal importance of age. आंसर दोनों में सेम आपने लिखना है. आपने सारी वो एजेस बतानी है. They are not asking about the methods to determine the age. They just ask कि what is the importance of age. तो एज की जो इम्पोर्टेंस है उसमें यही बात आ जाती है कि दिस एज हैज अ डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस. जैसे हमने बात की थी प्रैक्टिकल में भी कि इंट्रायूट्राइन और एक्स्ट्रायूट्राइन लाइफ में डिफरेंट एजेस की इम्पोर्टेंस है. तो वो एक छोटा सा आसान सा टॉपिक है. इम्पोर्टेंस इसलिए होती है कि आपको कई सिविल राइट्स होते हैं और कई क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं जो नहीं होती इन अ पर्टिकुलर एज. सो दिस इज नोन एज, ये देखो दो तरह से क्वेश्चन आता है. व्हाट इज medical legal importance of age and the question comes as what are the ages of medical legal importance. ठीक है, ये दो तरह से आएगा. तो फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे हमने पहले भी बात की है इसलिए आप लोग मुझे बताओगे कि इंट्रायूट्राइन लाइफ में कौन कौन सी इंपॉर्टेंट एजेस है. ये तो हो गई प्री एम्ब्रियोनिक, एम्ब्रियोनिक हो गई, फिटल हो गई. ऑर्गेनोजेनेसिस की क्या है, लेस देन 12 वीक. ऑर्गेनोजेनेसिस होगी 12 के बाद. फिर वाइबिलिटी की क्या बताई थी मैंने, 7 मंथ. ठीक है. मैच्योरिटी की 9 to 10 मंथ्स ऑफ बेबी जो होता है वो मैच्योर होता है. उसमें क्या देखना होता है, आपने एग्जामिन क्या करना होता है, शाबाश, ऑसिफिकेशन सेंटर. ठीक है. सो प्री एम्ब्रियोनिक एज, एम्ब्रियोनिक एज, ऑर्गेनोजेनेसिस की एज, क्विकनिंग. व्हाट इज क्विकनिंग? What is quickening? Yeah, basically the baby is moving throughout, but this is a condition where a female can feel the movement of the baby, the kick of the baby. Okay, that is basically different. In a primary gravida, she can have that quickening up to 20 weeks also, but in a multi-gravida where she has already babies, she can feel that as early as 14 weeks. Then age of viability, that is 28 weeks. Full term fetus is 10 lunar month और 9 to 10 को हम full term कहते हैं. So अब आ जाती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, हम कर चुके हैं प्रैक्टिकल में, बट reinforcement है. One thing is known as abortion. In abortion we have two types of things. क्या थी? Before organogenesis, इसका थे हमल, शाबाश. After organogenesis, इसका थे जीन, very good. And after 7 month viability it comes under infanticide. ठीक है.
up to 1 year of age. Then extra uterine life में हम इसको न्यूनेट बोलते हैं जब तक बेबी, दैट इज वाई न्यूनेटोलॉजी इज यूनिट जो बिल्कुल 1 मंथ तक के बच्चों को डील करते हैं नर्सरी में, न्यूनेटोलॉजी में. देन इन्फेंट आ गया, ठीक है. देन टोडलर आ गया, स्कूल गोइंग, अब तो खैर टोडलर स्कूल गोइंग होते हैं नॉर्मली, ठीक है. देन आपकी स्कूलिंग एज के बाद एडोलेसेंस आपकी स्टार्ट होती है 12 to 16 में. एंड देन आपकी इम्पॉर्टेंट एजेस आ जाती हैं क्रिमिनल रिस्पॉन्सिबिलिटी. क्या बताई थी सर ने फर्स्ट डे? लेस देन क्या है जो जब कंप्लीटली. फिर 7 to 12 प्रिजम्पशन ऑफ इनोसेंस है, हम प्रिज्यूम करते हैं कि इनोसेंट है अंटिल उसके अंदर कुछ और प्रॉब्लम ना हो. इसके साथ 3 लॉज भी हैं पाकिस्तान पीनल कोड के 83, 82 और 85, लेकिन वो हम अभी नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि भी आपके लिए डिफिकल्ट है, वो याद करना बाद में करेंगे. So these are the ages of criminal responsibility. 12 to 18 क्या होगा? 12 to 18 और उसको क्या करेंगे? जुवेनाइल कोर्स, ठीक है. कैपिटल पनिशमेंट नहीं दे रहे हो, तो 18 से ऊपर कैपिटल पनिशमेंट होती है और अडल्ट जेल्स होती है. उससे नीचे जो है वो जुवेनाइल जेल्स होती है, जो सॉर्ट ऑफ वहाँ रिहैब सेंटर ही होता है जहाँ पे वो बिकॉज एज्यूम कि बच्चा अडल्ट नहीं है तो रिहैब सेंटर का है. Then consent in anything, consent in any relation, consent for the medical treatment, ठीक है. This is all. If a person is less than 7 years, he or she cannot give permission, ठीक है. उसके जो guardian होंगे, जो उसके parents होंगे, वो consent देंगे. If that person is 7 to 12 years of age, he or she, above 12 to 16 years of age, वो दे सकता है कि जी मुझे बुखार है तो वो चेक करवा लेगा अपना, या कोई हल्का फुल्का प्रॉब्लम है, स्टिच लगना है तो वो अपनी दे सकता है. बट फॉर द मेजर प्रोसीजर्स, अपेंडिसेक्टमी हो रही है जहाँ पे जनरल एनेस्थीसिया दे रहा है, दैट पर्सन शुड बी 18 years of age normally. 16 for the consent is not for the consent for the medical treatment. मेडिकल ट्रीटमेंट में consent की दोनों की एज 18 है. बट जनरली जो consent है, बिकॉज हमारे पास जो सिविल मैरिज की एज है, जो कोर्ट मैरिज नहीं है, वो 16 फॉर फीमेल्स है. दैट इज व्हाई इट इज रिटन इन कि कंसेंट ऑफ एनी टाइप. अदरवाइज फॉर द मेडिकल ट्रीटमेंट कंसेंट की एज आपके पास सेम आती है. देन अंडर 15 years नो परमिशन टू वर्क इन द फैक्ट्री, ठीक है. 17 years परमिशन टू वर्क इन माइन. इन सिंपल सी चीजें. किडनैपिंग इसके ऊपर एब्डक्शन में चले जाते हैं, दैट इज व्हाई इट इज रिटन एज किडनैपिंग, ठीक है. 14 and 16 Zinab al-Jabr to the even the wife, that is why the age is written. Otherwise Zinab al-Jabr is a Zinab al-Jabr either with a woman of 40 years, okay? But it is specifically if the wife is there and less than 16 years, this is known as Zinab al-Jabr. Court marriage age is 21 and 18. Then abduction, kidnapping के ऊपर abduction चले जाती है. सिविल राइट्स, ठीक है. सिविल राइट्स के लिए कि जब आपका आईडी कार्ड बन जाता है, अच्छा बाद में डिस्कस कर लेना तब और कैसे, ठीक है. सो मेजर या एडल्ट हो रहा है. आपको पता है जब हम लोग छोटे थे तो 21 years में आपको वोट करने का राइट मिलता था, बट अब आपको कब मिलता है, ठीक है. तो प्रॉपर्टी चेंज हो रही है, सब कुछ हो रहा है, वो आपके 18 years में आपको कस्टडी मिलता है. ज्वाइन द गवर्नमेंट जॉब ऑलमोस्ट 26 तक. बट डॉक्टर्स में क्या होता है, आप लोग पढ़ते पढ़ते बूढ़े हो जाते हो तो 32 years तक आपकी पढ़ाई हुई है गवर्नमेंट जॉब. अदरवाइज 26 में आम जगह पे उसके बाद आपकी गवर्नमेंट जॉब है, ठीक है. और हेल्थ सर्विस में सीनियर में बढ़ा दी. रिटायरमेंट एट 60, बट यहाँ पे एक्सटेंशन मिलती है 70 तक. उसके बाद आपको सीनियर पोस्ट, आईडी कार्ड, ये सब आपको पता है. पासपोर्ट का गलत लिखा हुआ है, अब तो पासपोर्ट बिल्कुल बच्चे पैदा हो रहे हो तो तभी होता है. ड्राइविंग लाइसेंस यू ऑल नो 18 and 21. कैंडिडेट में खड़े हो गए तो अभी आप सब में से कोई भी नहीं खड़ा हो सकता, सिर्फ CRGR करवाओ.